But no issues. I'll in Google. And then whatever is there, take that help only. Ma'am, supplementary book. Supplementary, yes. Okay, ma'am. Now, figures of speech. Ma'am, we have to write this. Wait, I will tell you. First, understand. Now, first is simile. The first is simile. In this, what happens? There is comparison between two objects. There is comparison between two objects and these words. These words are used like don't write anything. Now see, here as words are used, okay, this way it is simile here. Okay, so now another example with like her face shines like sun. Now see, light is here. So face shine with sun. Here two comparisons are made and the words, these both the words are used. That is why here simile is there. Now write this much. मैम आपने इंग्लिश में जो ब्रिंगिंग अप करी कराया उसके बाद आपने उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज सॉल्व करवाई? नहीं टेक्सचुअल अभी नहीं करवाई है। ओके मैम। उसके पास बुक ही नहीं है। मैम यस मैम हमारे सिलेबस में अब ब्रिंगिंग अप द करी वो चैप्टर निकल गया। किसके सिलेबस में से? मैम मितवा मैम हमारे सिलेबस में से अब मैम ने कहा कि वो चैप्टर अभी उन्होंने कराया नहीं और टेस्ट बहुत नजदीक है तो फिर वो डाउट भी बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएगी और ग्रामर का एक चैप्टर बाकी है तो उन्होंने कहा कि वो मैम से कहेगी कि ये चैप्टर निकाल दिया सिलेबस में से। हाँ मतलब बट वैसे तो है ना सिलेबस में आगे है, अभी एग्जाम में नहीं आएगा बट बाद में तो आएगा ना। यस मैम। ग्रामर में क्या बाकी है आपका? मैम प्रीपोजिशंस जो आपने ट्यूशन में करवा लिया था पर मैं नहीं ज्वाइन हुई थी तभी। अच्छा ठीक है मैम ये हमको लिखना है। written यस मैम डन। Yes, ma'am. मैम लास्ट वन।
Ma'am, 1 minute. Okay. Okay, done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second is metaphor. Metaphor means what? Again the same thing. Comparison between two, but this time they will not use as or like. These words will not be used, but the comparison will be made. Like the camel is the ship of the desert. It is not written that camel is like the ship of the desert. Like is not there because if like we put here, then it will become simile. Okay, comparison is here, but this is without these words. Any one more example? He runs like cheetah. Okay, so now comparison is there. It is not written he runs like cheetah. Sorry. Like what it has become? Simile. Ma'am, can you say can you explain it again? My network was stuck. If I write he was a cheetah in the race, that means he was running like cheetah in the race. Okay, but here they don't have used like. So Ma'am, it can is you? direct comparison is here. Okay, Ma'am, without the Ma'am. words of as and like. Ma'am, Now can you please say what write is that. metaphor? Ma'am, can you say what is metaphor? Who is this? Ma'am, my network was stuck, so. Are who is this but? Dogs. Daksh. Daksh metaphor is the same as simile, but the words as or like are not getting used here. Okay. Now write this much everyone. Done, ma'am. Done, ma'am. Now third is personification. Now personification in this, what is done that the action of human beings
are passed to inanimate objects. What are inanimate objects? They are non-living. Non-living Okay? objects. animals. Human actions are transferred to non-living. Okay? Like the flower is smiling. Smiling is the action of human being and given to flower, which is non-living object. Okay? So this is here personification. Other, Ma'am, Yana, don't write right now. Write it. Waves are dancing. Dance is the action of a human being given to waves, non-living. Talking is the action of human being given to trees. ma'am, we can add our sentence also. Yes. Done, ma'am. Ma'am, completed. Done, Ma'am, ma'am. done. Now put the heading prepositions. Okay, ma'am. Now prepositions are the words which shows relation between nouns, pronouns and other words. What is the relation between other words with noun or pronoun? Okay, noun और pronoun के साथ बाकी सारे words का क्या relation है वो prepositions की help से show होता है. ठीक है? Okay, and in the prepositions words are
Students have clicked off your videos. Why? Videos should remain on. मैम मेरी तो बैटरी नहीं है, चार्जिंग में लगा है तो भी उतरती जा रही है। पहले 20 थी, अब 6 हो गई मेरी चार्जिंग में भी नहीं। Write this much. डन मैम। Done, ma'am. मैम 1 minute। Okay. डन मैम। Completed. मैम डन। 1 minute मैम। मैम डन मैम। Okay. Now you will have to choose the correct word, correct preposition. Now yes, this Jia, what are you doing? What are you doing? Nothing, ma'am. You have not started this? Ma'am, I'm writing. Show me what you have written. Yeah, ma'am. Ma'am, I'm writing this that you have tell.
Wait. Okay. Fine. Now see, what is the answer of this? See, when we talk about two, na, any two, तो उनके बीच में between आता है. Between. Between. And if there are many, then among. But here we have two, so we will use between. Yes. Ma'am, can I answer? Ma'am, can I from? From. Ma'am, please zoom your screen little bit. Is Ma'am, in. see everyone. When an action which is like that they are doing means किसी चीज के अंदर एंटर हो रहे हैं, ऑलरेडी अंदर है तो इन आएगा. बट इफ दे आर एंटरिंग, मार्च करना मतलब चलना, सो दैट मीन्स वो अंदर एंटर हो रहे हैं, इनटू आएगा. ऑलरेडी इफ दे आर ऑलरेडी देयर तब इन आएगा. ओके, Done, ma'am. Done. Ma'am, can you please side? तो ये तुम लोगों को जूम करवाना तो तुम्हें जूम कर रही हूँ. Yes. Among. Correct. Now they are not given any number 2, or they have not told that he was standing between this and this. They have not taken name for 2. So among. Ma'am, can I? Ma'am, with. बोलो. Which? 2. There are some words, along with those words, fixed prepositions are used. Okay. So true to his friends. Yes. With. By. देखो, जब कोई चीज स्ट्रक करती है, जैसे ये है स्टोन, ये उसको लगकर अलग हो गया, दूर हो गया, इनका मतलब है साथ में ही रहना. ठीक है, तो साथ में नहीं है, ये चिपक नहीं गया. ओके ना, अलग हो गया. सो बाय.
Yes. For. On. For. Ma'am, what is the meaning of struck? Yes, struck. Yes, ma'am. Who is this? Who is asking? Kushi Mewada. Who? Kushi Mewada. Okay. खुशी struck means लगी, कोई चीज टकराई. अब ये बताओ beside. देखो beside का मतलब होता है हमारे साइड में, और ये besides का मतलब है इसके अलावा और कुछ भी, इसके अलावा और कुछ भी. और ये वाले beside का मतलब है हमारी साइड में. अब देखो advising us, he gave us money. Besides advising us, हमें एडवाइस देने के अलावा उसने मनी भी दी. Beside. इसका मीनिंग तो साइड में है, हमारे साइड में. So okay, this much is enough. Today we have completed your chapter also. Okay, then we have done your figures of speech and then preposition. Yes, ma'am. Okay, so now you are having your SS. Yes, ma'am. Yes, SST. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so ma'am is about to come. So I am leaving. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay. Ma'am, chapter 1 start करना है. बाकी की सब बच्चे की वीडियो क्यों ऑफ है? चलो, वेदांत को कहाँ बिठा दिया है मम्मी ने आज? क्या हुआ वेदांत? गेस्ट आए हुए, तो तुझे कहाँ बिठा दिया मम्मी ने? स्टोर रूम में बिठा दिया? स्टोर रूम में. मैम मैं ऑन नहीं कर सकता. मैम प्रसन्न, ध्वनित, चलो. मैम मेरी मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, 10% ही है. मैम चार्जिंग में लगा है तो भी डाउन नहीं होती. यस मैम, ओनली 10%. प्रसन्न की तरह हो ना, खाते वक्त इतना फोन यूज करते हो, वो भी खाता है और उसका फोन भी खा जाता है, तो बैटरी नहीं रहती. ओके चलो,
मैम ओके जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है आज। यस मैम ध्याना मैम यस बेटा कंप्लीट। मैम हमने कितने कितने चैप्टर किए हैं एसएस में? एक मिनट ध्याना बीच में जिया पटेल 2 मिनट बेटा, अगर बात करनी है तो रिजाइन करो। मैं ध्याना से बात कर रही हूँ। ध्याना यस मैम। बीच में कहाँ गायब थे आप? मैम मैं पहले वो आपने बोला था ना कि उनसे बात कर लेना, तो मैम अभी मेरी बुक्स आई नहीं थी, तो आपने बोला था बुक्स आए उसके बाद बात कर लेना सोनिया मैम से, तो अभी मैं शिफ्ट हो गई हूँ मैम। अच्छा कौन सी बुक है? एनसीईआरटी बुक है अभी आपकी बेटी? यस मैम वो 3। देखो ज्योग्राफी निकालो, आपको अलग से टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैम ये वाली बुक है। हाँ चलो, वेलकम टू दिस ग्रुप देन। थैंक यू मैम। और मैम उसके पहले मतलब आपने कितने चैप्टर्स करवाए हैं? बहुत सारे हो गए, तुम अभी टेंशन मत करो, अभी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक अपने पास रखो। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग श्लोक एंड गुड मॉर्निंग टू यू। नो मैम मैं तो अभी ज्वाइन हुआ। इसलिए तो गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तू आएगा तो जरूर, पर पूरे लेक्चर में सोते ही रहेगा। नहीं मैम मेरी मम्मी डांटती है मैं सोता हूँ तो। ये रिकॉर्ड होता है ना, तेरी मम्मी को व्हाट्सएप पे मैं भेजने वाली हूँ कि श्लोक क्या करता है देखो। मैम मेरी मम्मी कहती है सो जा। ओके चलो खुशी आपके पास टेक्स्ट बुक है? जिया वेट आई एम कमिंग टू यू बेटा। नो मैम। सबको जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक निकालनी है। खुशी आपको एनसीईआरटी है ना बेटा? यस। हाँ सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1। And what's the name of the chapter? Environment. Environment. Yes ma'am I have that too. Yes. Okay. Now see. Only Vedant will answer. Huh? I don't want any other to poke their nose in between. Vedant. Yes ma'am. We have completed history 1, 2 and 3. Yes ma'am. We have completed geography 1, 2 and 3. Yes. And we have completed civics 1, 2 and 3. Yes. Right? And in this month, we have completed history 3 and civics 3. Okay? Yes. अच्छा अंश। हाँ अंश आप ये बोल रहे हो कि आपके स्कूल में हिस्ट्री 3 करवाया? हाँ मैम आज कल से खत्म भी हो गया। कोई बात नहीं, हमारा भी हो गया है ना। मेरी स्कूल में भी पता है तू और अंश एक ही स्कूल में हो। सिविक्स में कितने चैप्टर्स हुए बेटा? मैम सिविक्स में सेकंड खत्म हो गया। कोई बात नहीं, एक चैप्टर आ गया है। ज्योग्राफी में मैम 2 अगेन एक चैप्टर आ गया। ओके ध्याना, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन ओवर हियर। आई हैव कंप्लीटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, सब में 3-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। खुशी आपको भी ये नोट डाउन करना है तो कर दो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इंफॉर्मेशन। आज मैं ज्योग्राफी 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ वापस। काफी बच्चों की एग्जाम है जिनको हिस्ट्री 1 ज्योग्राफी 1 और सिविक्स 1 है, किसी को हिस्ट्री 2 ज्योग्राफी 1 सिविक्स 1। काफी बच्चों की एग्जाम्स आ रही है जुलाई में, राइट? तो हम थोड़ा सा रिवाइज करें। यस बेटा आई हैव नोट डाउन, मुझे धारा ने बता दिया है, मैंने बच्चों की डेट्स लिख दी। ओके अब ये चैप्टर, ये जो आपको यहाँ से एक मैसेज आया होगा एसपीजीटी ऐप का, जिसमें आप वीडियो देख सकते हो इसी चैप्टर्स के। Yes. है ना? यस मैम तो मैंने दाना, कर दिया खुशी, उसमें। हर्ष, जिया, मितवा, जिस भी चैप्टर आपने मेरा लाइव सेशन नहीं अटेंड किया है, यू कैन गो टू दैट ऐप, यू कैन सी माय वीडियो। और फिर वो वीडियो नहीं समझ में आता है तो हम लाइव सेशन वापस लेंगे, ठीक है? और मैं रिवीजन तो करवाती रहूंगी इन बिटवीन, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीक मैं स्टार्ट करूंगी
हाँ, नेक्स्ट वीक में ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अब हम आज वापस करेंगे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट फर्स्ट। चलो, ध्याना, खुशी, हर्ष, यस मैम। यस मैम। वनीत, आप सबको ध्यान देना है। ओके मैम। Now Dhyana, can you tell us what do you mean by environment? Ma'am, environment is our basic life support system. Okay. मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन करवा के एक एमसीक्यू शेयर करूंगी, हाँ, जो सबको आंसर देना है। ध्याना इज राइट, एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट। यस अंश, यू कैन आंसर अनदर। मैम, आवर सराउंडिंग्स। Yes, our surrounding. Khushi, do you have another answer? Don't worry बेटा, नहीं है तो नहीं बोलना है, डरना नहीं है कि मैम ने पूछा है तो मुझे बोलना ही है, ठीक है? Ma'am, can I say second? Yes, you can say ध्याना बेटा. It provides the air that we breathe. It provides us all the basic needs, right? Okay, so everything surrounding us which provides us basic needs, which is a life support, is known as an environment. We modify this environment to fulfill our needs. हम ये environment को modify करते यानी change करते हैं हमारी needs को fulfill करने के लिए, ठीक है? हमारी needs इतनी होती है, day by day increase होती है, तो हम इसको modify करते रहते हैं। अब पेज नंबर 2 में हमें दिया गया है components of environment. Khushi, can you see the components of environment diagram? Yes, ma'am. आपको हर्ष को, ध्याना को, जिया को, मितवा को ये डायग्राम आज ड्रॉ करना है होमवर्क में। ओके मैम। आई एम रिपीटिंग द नेम अगेन, जिया, मितवा, ध्याना, हर्ष, खुशी। हर्ष ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ है? पेज नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मैम इस तरह ड्रॉ करना है? यस, उस तरह, इसी तरह ड्रॉ कर, राइट? ओके, ध्याना। यस मैम। समझ में आ गया ना? उस टेक्स्ट बुक में टिक कर दो आप। ओके, खुशी, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें से देख के बोलना है बेटा आपको। नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। वेरी गुड। मितवा, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या है? नेम देम। मैम, लैंड, लिथोस्फीयर में लैंड मतलब लिथोस्फीयर, फिर लिविंग थिंग्स मतलब बायोस्फीयर, एयर मतलब एटमॉस्फेयर और वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर। ओके, जिया, ह्यूमन मेड में क्या है? मैम ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ह्यूमन में क्या है ध्याना? Yes, ma'am. Humans, the individuals, community, religions, educational, economic, political situations, etc. Situation. Okay. Okay. Natural environment has two things. Prasanna, you have to answer. What is biotic and abiotic? This natural environment is made up of two elements, that is biotic and abiotic. What do you mean by biotic and what do you mean by abiotic? Ma'am, can I? No, Prasanna will answer. मैम, कैन आई? I know. जिसको पता है कैन आई वाले रेज हैंड करेंगे, कैन आई नहीं बोलेंगे। मैम एक बार फिर से बोलना, आपने क्या बोला था? मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू हुआ था। मेरा बाकी सबको तो ऑडिबल है ना? Yes, ma'am. What do you mean by biotic and abiotic? बायोटिक का मतलब क्या और अबायोटिक का मतलब क्या?
देखो श्लोक तो कभी रिजाइन नहीं करेगा, वो आता है 1 घंटा सोने के लिए यहाँ पे। यस अंश, आंसर करो। The living organism are known as biotic, and the non-living elements are known as abiotic. Diya, give the example of biotic, beta. Biotic such as tree, abiotic water. Yes, and abiotic is, see, biotic means plants and animal, and abiotic means non-living animals. yes, non-living. ठीक है, चलो अभी नेचुरल एनवायरनमेंट में 4 डोमेन है, हमने 4 डोमेन के बारे में पढ़ना है। The 4 domains are that this all are what? They are abiotic, right? They are abiotic components. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere, एटमॉस्फेयर। और हम ये सभी स्फीयर के बारे में भी पढ़ेंगे हमारी बुक में, है ना, वाटर तक हम सब ये स्फीयर के बारे में भी एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। ओके, तो लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब रॉक होता है, स्फीयर का मतलब लेयर होता है। लिथो जो है सॉलिड क्रस्ट से बना हुआ था, टॉप लेयर। ये जो टॉप लेयर है ये हेल्प करता है फॉर द वेजिटेशन, इसमें काफी सारे मिनरल्स होते हैं। ये लैंडफॉर्म होता है जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सरफेस के होते हैं, कहीं पे माउंटेन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेटू होते हैं, वैलीज होते हैं। हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, राइट। और ये जो लैंडफॉर्म है सिर्फ हमें लिथोस्फीयर में नहीं पाया जाता, ओशन के अंदर भी ऐसे हमें लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है और ह्यूमन सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, एंड द मेन सोर्स इज मिनरल वेल्थ। तो ये लिथोस्फीयर क्या हमें प्रोवाइड करता है वो दिया गया है। ओके, एनी डाउट इन दिस? पटेल जिया व्हाट बेटा? Nothing, ma'am. Okay. Ma'am, ये लिथोस्फीयर डोमेन, video 1 minute because I want to set my phone. ओके, लिथोस्फीयर का मतलब पता चल गया? रुतवा? Yes, ma'am. What do you mean by lithosphere? Ma'am, solid like structure. Okay, I want the perfect definition of lithosphere. Yes, Lithosphere. I'm on. The lithosphere is the solid crust or hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. Lithosphere provides us forests, grasslands for grazing and human settlements. It is also a source of mineral wealth. Very good, very good. See, next Sunday there is my SST examiner and I'm going to ask this chapter. So you have to learn this whole chapter, beta. History 1, Geography 1 and Civics 1. Only first chapter, ma'am. Yes. श्लोक जाग गया? मैम मैं सोया ही नहीं था। ठीक है मैम। मैम प्लीज मैम, आई हैव वन डाउट। हाँ हर्ष, तुम लेट ज्वाइन हुए बेटा। नो मैम, ऐसा हुआ कि मैम मैं पीसी से ज्वाइन हुआ था पहले, बट उसमें क्या हुआ, नेटवर्क चला गया ना, फिर बाद में मेरा फोन कोई दूसरी जगह पे रखा था मैम, और इसलिए मैं बाद में वहां से फोन लेके ज्वाइन हुआ। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। मैम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैम एसएस में जो हिस्ट्री है मैम, आपने उसका चैप्टर 2 का पीडीएफ नहीं भेजा है, मींस वर्कशीट भेजा है ना मैम, बट मुझे नहीं मिला। ऑफिस में फोन करो बेटा। वेदांत आ गई है ना, मैंने तीनों की तीनों भेज दी है। मैम हिस्ट्री चैप्टर 2 की मुझे भी नहीं आई है। यस मैम, नहीं मिली है। हिस्ट्री 2 नहीं मिली है। हिस्ट्री 2 एंड जियो 3 आल्सो नहीं मिली है, जियो की है। मैम ज्योग्राफी चैप्टर 3 की भी नहीं मिली है। एक मिनट एक ही साथ बोलो। चलो मुझे वापस लिखवा दो, रुको। वर्कशीट पेंडिंग मैं आज लिख देती हूँ और आपको ये सैटरडे मिल जाएगी। 7th NCERT। ओके चलो हर्ष, हिस्ट्री 2। यस मैम, यस मैम। हिस्ट्री 1 and 3 मिल गई है, 2 की नहीं मिली है।
ठीक है। यस Yes. मैम। ज्योग्राफी की वेदांत ज्योग्राफी की कौन सी मिली है? मैम ज्योग्राफी की तो मैम 2 मिली है। मैम ज्योग्राफी चैप्टर 3 नहीं मिली है। ओके, ज्योग्राफी 3 पेंडिंग। चलो अभी मैम सिविक्स चैप्टर 2। सिविक्स 2 और 3 भी मैंने करवाया ना? 3 भी मैंने चैप्टर तो 3 समझा दिया ना, पर आपको उसकी वर्कशीट मिली? नो मैम। कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है। लेट मी चेक। मैम नहीं मिली है, अभी खत्म हुआ एक्सप्लेनेशन इसीलिए। यस चलो ओके। चलो सबसे पहले आपको मिलेगी हिस्ट्री 2 ये वीक में। डन एवरीवन? ओके मैम। चलो ओके मैम। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। आपको ये मिल जाएगी वर्कशीट। मैंने फाइल में देख लिया, मैम सिविक्स 3 नहीं आई। मैम ने Okay. कहा कि वर्कशीट सारी फाइल में लिख के देने की है, तो उसमें लिखे या बुक में लिख रहे हैं उसमें? साक्षी मैम ने जैसे बोला बेटा वैसे करना है। ओके मैम। ये बेटा हाँ। पर मैम चलो। मैंने बाकी सारी दूसरी बुक में लिखी है। 3 पेज फाड़ दो उसका, स्टेपल कर दो, फाइलिंग कर दो। ओके मैम। मैम हमें मैम जो वर्कशीट आप भेजते हैं मैम उसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना होता है ना मैम? उसके अंदर फिल नहीं करना होता है, उसके आंसर्स लिखने होते हैं। नो मैम ऐसे बोल रहा हूँ मैम, उसके अलावा तो हमें और कुछ नहीं लिखना होता है ना वर्कशीट लिखना के होता अलावा? है, लिखना होता है, बहुत कुछ लिखना होता है। अभी आपने मिस किया बेटा, पेज नंबर 2 में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्कूल स्टार्ट हो गई है तो मैं थोड़ा होमवर्क कम दूंगी। मैम मैम आपने क्लास में चैप्टर 1 ज्योग्राफी की टेस्ट ले ली है। टेस्ट की बात नहीं कर रहे बेटा, वो क्लास टेस्ट ली है। ये तीनों चैप्टर की कंबाइंड टेस्ट है। वो क्लास टेस्ट का पेपर अलग था, सिर्फ एमसीक्यू था। यहाँ पे पूरा पेपर पैटर्न अलग आएगा। मोर देन 30 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, 45 मार्क्स। ओके चलो, तो मैं इतना बता रहे तो 50 मार्क्स की ले लेती हूँ। डन मैम। डन मैम। अभी लिथोस्फीयर का सबको क्लियर है? लिथोस्फीयर में किसी को डाउट नहीं है ना? नो मैम। चलो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड डोमेन। हर्ष वीडियो ऑन करना बेटा। प्रसन्न तो पता नहीं गायब हो जाता है। Now we will move on to the second domain. Shlok will tell us about the second domain. Second domain is hydrosphere. Shlok, what do you mean by hydrosphere? Ma'am, hydrosphere means any source of water like ocean, sea, lake, river. It is not any source. It is various source. Various source. You are using a wrong term. It is not any beta. It is a various source of water. Different types of water bodies. हम हाइड्रो का मतलब क्या बोलते हैं? पानी। और स्फीयर का मतलब लेयर, वो लेयर जिसमें पानी है। अब देखो, हम पूरे वर्ल्ड को अगर देखेंगे ना, तो ये जो लिथोस्फीयर है ना, वो सिर्फ 29% है। पूरे अर्थ में हम देखेंगे ना तो लिथोस्फीयर सिर्फ 29 है, और सबसे ज्यादा 71% वाटर है। इसलिए जब हम स्पेस के ऊपर से अर्थ को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो कैसा प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट। पानी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा पानी कौन से वाटर सोर्स में होता है? ओशन। 97% इज इन ओशन, राइट? और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकेबल वाटर है, वो सिर्फ 1% है हमारे पास। ठीक है, फ्रेश वाटर। अच्छा, मुझे कौन बताएगा विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? मैम नर्मदा। यस जिया। मैम रेन। Yes, rain is the main source of water, right? We have studied about the water cycle, and we will study in this year also again about the water cycle. Okay, so in science you have already studied in 4th and 5th about the water cycle. खुशी समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes. ओके, तो ये जो डोमेन है हाइड्रोस्फीयर, उसमें अलग अलग वाटर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशन, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। अभी एटमॉस्फेयर, अब हम कौन सा डोमेन पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर, ये जो डोमेन है ना उसका भी हम पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स जो करता है। तो Ma'am, your voice is cracking. Ma'am, your voice is breaking. Your voice is cracking. 2 मिनट के लिए होगा। Now it is clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's clear. Now, Dhara, can you explain us ma'am. about atmosphere? Ma'am, atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Now, what it help us? It help us from the harmful ray. और उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, 10 पार्टिकल होता है, एक ओजोन लेयर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एटमॉस्फेयर में ओजोन एक लेयर होता है protects us from the ultraviolet rays of the sun. yes Watching Mr. heat of Kamini. the sun. Protect our earth from sun. और मैम वो अभी Yes. टूट रहा है। Yes, ma'am, टूट गया है वो अभी। टूट नहीं गया है, वो थिन हो रहा है। वो थिन क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि उसमें क्या बढ़ रहा है, ऊपर जो एटमॉस्फेयर में पड़ रहा है। नहीं, सुनो, उसमें जो पॉल्यूशन मुझे बोलने दो, मैं बताती हूँ। वो जो लेयर है जहाँ पे ओजोन गैस है, ठीक है, वो पूरा एक लेयर ही होता है ओजोन गैस का, वो थिन हो रहा है बिकॉज देयर इज इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरा केमिकल इन दिस, राइट? मैम क्लोरोफ्लोरा सल्फेट इंक्रीज हो रहा है उसमें। ये गैस है, जो गैस कहाँ से एमिट होता है? इंडस्ट्री में से एमिट होता है। वो चिमनी देखते हैं ना हम लोग, धुआं नहीं निकलता है? Yes, ma'am, उस धुआं में से टाइप का गैस एमिट होता है, वो KFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइन। वो गैस उसमें से एमिट होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर एक लेयर में जाता है और वो ओजोन गैस को पतला कर रहा है, वो थिन कर रहा है, वो हार्म कर रहा है उसको। क्लियर? Yes, ma'am, I have a doubt. Yes, ma'am. एक मिनट, जिसको डाउट है वो रेज हैंड करो। आई हैव अ डाउट ऐसे नहीं। किसको डाउट है? मैं श्लोक। हाँ बोलो श्लोक। मैम ये ओजोन लेयर में खत्म हो जाए तो मैम क्या होगा? तो ये सन के रेज है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। ये सन के रेज हमारे बहुत सारे डिजीज इंक्रीज कर लेंगे। ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा बहुत सारे गैसेस है, तो वो गैसेस अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, पार्टिकल्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे। हर एक गैस के अपने आप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इश्यू हो जाएगी। सन के रेज हमें डायरेक्टली कभी भी छूटे नहीं। यस, ओके, चलो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट डोमेन, दैट इज बायोस्फीयर। अब ये जो प्लांट और एनिमल किंगडम यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही जो इंटरैक्ट करते हैं, वो वाला डोमेन है बायोस्फीयर। और ये एक नैरो जोन है जहाँ दोनों रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर। हाँ बोलो बेटा। Plants and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air is interact with each other to support life. Okay. Now we will come to this ecosystem, right? Who will explain me what do you mean by ecosystem? Ma'am, can I? Yes. Daksh will tell us. Ansh ne answer. Can I? No, wait. No, can I? Daksh. Yes, ma'am. Good morning, sir. Ma'am, What do you mean by ecosystem? the natural environment of the earth is called ecosystem. अच्छा, मितवा चलो बोलो आंसर। Ma'am, Ma'am, ecosystem is a system which is formed by the interaction of living. Yes. Ma'am, can I? चलो। Ma'am, can I say श्लोक। Ma'am, can I? Ma'am, it is a system formed by the international of all
living organisms with each other and with interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ओके तो ये जो इकोसिस्टम है ना, यानी कि जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अगर हम मान लो कि एक छोटे से पॉन्ड को देखते हैं, तो वो पॉन्ड में जो फिश है, फ्रॉग है, ट्री है, वो सभी को इकोसिस्टम बोला है। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल पॉन्ड में भी हो सकता है इकोसिस्टम, रिवर में भी हो सकता है, ओशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक लार्ज रेन फॉरेस्ट भी हो सकती है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में। क्या दक्ष? मैम एक छोटी सी डिफाइन बोलो। हाँ छोटी सी बोलना। मैम when the living and non-living thing interact with each other is called ecosystem. Okay. When living organism as well as the relation between organism in their surrounding, they interact in their surrounding. You have to add this word in their surrounding. Is known as ecosystem. Ecosystem can be seen in a large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even in the small pond. Okay? मैम जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछोगे तब हमें ये पूरा लिखने का होगा। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जो ग्लॉसरी में है वो भी लिख सकते हो, और एक आपके टेक्स्ट बुक में आपको लिखवाया है वो भी लिख सकते हो। जो इजी आपको लर्न हो, जो इजी भी आपको लर्न हो। यस मैं बताऊं इकोसिस्टम का मीनिंग? नहीं हो गया, खत्म हो गया मैम। हाँ वेदांत। Yes, ma'am. All plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. Yes. And you have to write with the example. अगर ये 2 मार्कर आता है तो आपको ये पूरा लिखना है। आप ये लर्न करना, ग्लॉसरी वाला बहुत ही हार्ड है, तो जस्ट लीव इट, आपको ये इसके मार्क्स मिलेंगे। मैं टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है? पेज नंबर 5। वेदांत ने टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा, मैंने अंडरलाइन भी करवाया था। हाँ पेज नंबर 4 में। मैम मैं आपको बताऊं, वो हम लिख सकते हैं। बताओ। An ecosystem is a community in a given area where living organisms interact with each other and their immediate surrounding include non-living. ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। जिया मत बोलो। जिया सुनो बेटा, टेक्स्ट बुक में है ओके मैम। वेट, ऑडिबल हूँ ना मैं? अभी एक फोन आ गया। चलो जिया बेटा, टेक्स्ट बुक में वेदांत ने पढ़ा है, दैट इज मोर इजी लैंग्वेज। सी ऑलवेज यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज व्हिच इज इजी टू समराइज। ठीक है, तो पेज नंबर 5 में दिया है all plants and animal human being depend on their immediate surrounding, आजू बाजू के सराउंडिंग में often they are also interdependent, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑर्गेनिज्म खुद में और उनके सराउंडिंग में, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, और उसकी कुछ एग्जांपल्स दिए। क्लियर? अब सिर्फ 2 चीज बाकी है, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूंगी, एमसीक्यू टेस्ट होगी इस चैप्टर की, क्विक रिवीजन होगा इस चैप्टर का। जिस बच्चे का नाम बोलूंगी वो ही बोलेगा। सॉरी वाली लिख सकते हैं इकोसिस्टम की डिफाइन? हाँ लिख सकते हो, अगर तुझे याद रहता है तो तू वो भी लिख सकता है। मैम आपने फर्स्ट पेज में ब्लू बॉक्स भी लिखने को बोला था। ओके हर्ष, कैन आई रीड द ह्यूमन एनवायरनमेंट? नहीं रीड करना है, कुछ रीड नहीं करना है। हर्ष, वाटर सिस्टम क्या है? Ma'am, I want to answer. Ma'am, can I say? Ma'am, can I say? तो भी कहना ही बोली कि उनको तो मैं चांस ही नहीं दूंगी।
दिया परमार। मैं बोल रही है मैम, द मेथड इन विच goods are exchanged without the use of money is known as barter system. Yes, it is known as barter system. आप सबको ये ग्लॉसरी लर्न करनी है, ठीक है। खुशी आपको समझ में आ गया बार्टर सिस्टम क्या है? जो ट्रेड लिया, जो हम एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते, पर उस ट्रेडिंग में हम करेंसी यूज नहीं करते। मान लो तुम्हारे पास से मैंने राइस लिया है और सामने मैं तुम्हें व्हीट देती हूँ, तो हम गुड्स के सामने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, चीज के सामने चीज को एक्सचेंज करते हैं, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जब करेंसी नहीं फाउंड हुआ था तब लोग बार्टर सिस्टम करते थे। क्लियर खुशी बेटा? Yes. It is a trade in which goods are exchanging without the use of money. Yes, ध्यान, पर मैंने बोला नहीं आपको बोलने के लिए बेटा। Done. This topic is finished. Now we come to human environment. Human being interact with the environment. हम environment के साथ interact कर रहे हैं, हमारे needs बहुत सारे, हम इस environment को modify कर रहे हैं, natural surrounding को हम disturb कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे नीड्स बढ़ रही है वैसे वैसे न्यू क्रॉप्स, डोमेस्टिक सरप्लस फूड और वो सब। ये सिर्फ एक पैराग्राफ आपको एक बार रीड कर देना है। ओके सभी, मैं जब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ तब तक को ह्यूमन एनवायरनमेंट वाला पैराग्राफ है, एवरीवन हैव टू रीड इट इन देयर माइंड। ओके ओके मैम। आप एक चीज कराने भूल गए। क्या वेदांत? मैम 5th June every year the World Environment Day is celebrated। वो चीज करा। कौन सा बेटा? रिपीट करो वापस। मैम 5th June every year the World Environment Day is celebrated। हाँ, यस यस, डू यू नो वाला। मैम फर्स्ट पेज में ब्लू बॉक्स वाला भी आप लिखवाना भूल गए। यस, एनवायरनमेंट वाला। यस मैम। ओके वेदांत, जितना भी मैंने टिक करवाया है, जो नए बच्चे उनको टिक करवा दो। यस मैम। फर्स्ट, environment is our basic life support system, page number 1, 2 box. Then components of environment, read the diagram and biotic and abiotic definitions on the similar page. Then word origin, environment, French word environment meaning neighborhood. And वॉइस परफेक्ट नहीं आ रहा। मैम उसका वॉइस नहीं आ रहा है। कोई नहीं, चलो मैं बाद में करवा देती हूँ। नाउ एवरीवन पे अटेंशन। ओके ओके मैम। कोई भी बीच में मैम नहीं बोलेगा, अदरवाइज आई विल स्टॉप शेयरिंग। विजिबल टू एवरीवन? यस यस yes ma'am। Yes, ma'am. वी विल स्टार्ट फ्रॉम ध्याना। यस मैम। First one you have to answer. Which of the following is biotic? Okay, wait. मैम आपने सब आंसर दिखा दिए। Yes, yes. रुक जाओ, मैं चेंज कर देती हूँ। चलो ध्याना, इसका आंसर दो। Which one of the following is a basic life support? Environment. Okay. Diya Parmar. Yes, ma'am. Which one of the following is created by the nature? Option B, mountain, rivers and trees. Right. Khushi. Yes. Third one, the domain of water is referred to what? इसमें से water कौन सा डोमेन है? लिथोस्फीयर। नहीं खुशी, लिथोस्फीयर, लिथो मतलब लैंड, राइट खुशी। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और बायोस्फीयर यानी कि जो तीनों स्फीयर है, ओके और जो लिविंग बीइंग है उनके बीच का इंटरेक्शन होता है बायोस्फीयर। बेटा क्लियर? अभी वापस मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, द डोमेन ऑफ वाटर, वो कौन सा डोमेन है जिसको वाटर रिफर किया जाता है? तो इसमें से कौन सा आंसर रहेगा बेटा? लिथोस्फीयर। इसे आप समझ नहीं रहे हो। लिथोस्फीयर यानी पानी? यस। नहीं बेटा, हाइड्रोस्फीयर द आंसर इज।
Litho is rock. It is referred to land. Lithosphere is referred to which domain, beta? Land. Hydrosphere is referred to which domain, beta? Air. Water. आप कंफ्यूज हो गए हो बेटा? Yes, ma'am. देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 डोमेन है, पहले आप ये 4 डोमेन याद रखो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। सबसे पहला लिथोस्फीयर डोमेन है जो लैंड है। दूसरा हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। Water. Water. एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और बायोस्फीयर यानी कि ये जो तीनों स्फीयर है, लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर, नॉन लिविंग, उसके साथ जो लिविंग है वो दोनों का जो इंटरेक्शन है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अभी आप बोलना, लिथोस्फीयर यानी कि कौन सा स्फीयर? Land. वेरी गुड। हाइड्रोस्फीयर कौन सा? Water. वेरी गुड। एटमॉस्फेयर? Air. वेरी गुड। और बायोस्फीयर? Non-living. जो ये तीनों के साथ, ये तीनों नॉन लिविंग है और उसके साथ ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल। ओके, वेट बेटा, सो द आंसर ऑफ दिस इज हाइड्रोस्फीयर। यस यस हर्ष। अरे भाई देख, ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था तब मैंने लेफ्ट हुआ। कोई बात है पापा, हाँ बेटा, बात कर लेने का। क्या तेरा नहीं प्रॉब्लम है पापा? म्यूट हो जाओ बेटा, मैंने ऐड कर दिया है आपको। सॉरी मैम। जिया, योर टर्न। Yes, ma'am. Fourth one. What do plant and animal kingdom make together? Ma'am, biosphere. Yes. Your turn. Fifth one. Which one of the following animal is called the ship of the desert? कितना इजी है मितवा? नहीं हर्ष, सबका टर्न आएगा। क्या बेटा? मैम मुझे बोलना है? मितवा कौन है, मैं है कि तुम? नो मैम, मैं हूँ। कैमल। बस तो फिर which one of the following animal is called the ship of the desert? कैमल। ओके मैम इतना धारा, तुम्हारा टर्न। पहले सब गर्ल्स का टर्न खत्म हो जाने दो। धारा, when is the World Environment Day celebrated every year? 5th June. Okay. Rutva, your turn. Everyone on your video, beta. Rutva, who interact with environment and modify it according to their needs? Human beings. Right. चलो अभी किसका टर्न बाकी है गर्ल्स में से? गर्ल्स फिनिश्ड? Yes, ma'am. Finished. ध्याना ने आंसर दे दिया? ध्याना आपने आंसर दे दिया बेटा? Yes, ma'am. सबसे फर्स्ट तो मैंने। Okay, चलो we will start from Vedant. Vedant, 8th one. Which one of the following is not a threat to environment? It is not a threat to environment. Growing plants. Yes, right. Growing plants is not threat to environment. Harsh, your turn. It's a matter column which you have to answer. Yes ma'am, land is equal here, and ma'am animal and plants is equal to biotic, and mountain and group is equal to abiotic, and ma'am gases is equal to atmosphere. No. Achha, yes. Land to lithosphere. Animal, plant, you said what? See, the right answer is land is to abiotic, right? Animal, plant is to biotic. Mountain plateau is to the lithosphere. And gases and water vapor is to the dust. This is the right answer, Harsh. मैम पर आपने अभी कहा कि लैंड मतलब लिथोस्फीयर।
बेटा लैंड मतलब लिथोस्फीयर यानी लैंड यानी कि जो ऊपर का लेयर है वो वाला। पर आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं ना। माउंटेन प्लेटू मैंने भी प्लैन बोला है। कहाँ पे है? हाँ मैंने बोला ना। हाँ हाँ आपने सही बोला था। चलो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर देगा अंश। Yes, hydrosphere is a part of water. Part of biosphere बेटा। ओके यू कैन राइट वाटर ऑल्सो। इट इज रिफर्ड टू बोला है तो आपको वाटर लिखना है। पार्ट बोला है वो किसका पार्ट है तो वो बायोस्फीयर का पार्ट है। ओके बेटा। श्लोक योर टर्न। श्लोक ऑन योर वीडियो, प्रसन्न ऑन योर वीडियो, रुतवा ऑन योर। अब जिसका भी वीडियो ऑफ होगा वो रिमूव कर दूंगी उस समय। ध्याना ऑन योर वीडियो अगेन एंड अगेन। व्हाई हैव टू कीप टेलिंग एवरीवन मैं खा रहा हूँ ऑन देयर वीडियो। तो अभी टाइम मिला खाने को चालू लेक्चर में? चलो टू मेन किसको बोला था मैंने ये टर्न? श्लोक को। ओके श्लोक आंसर कर। टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट और डैश एंड डैश। मैम बायोटिक एंड अबायोटिक। वेरी गुड, इट इज अ राइट आंसर। नहीं, it is natural and man-made. Okay, we can say that, it's fine. Even your answer is right. चलो मैम दक्ष कहाँ चला गया? हाँ दक्ष। मैम यस मैम। मैम दक्ष हाँ मैम बोलो। क्या बेटा? मैम वेट अ मिनट, आई एम ध्याना पटेल। मैम मैं मेरा वीडियो ऑन रखती हूँ तो आपका आवाज क्लियर नहीं आता। अच्छा ठीक है, ओके मत करो। चलो दक्ष फोर्थ आंसर करो। मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन मॉडिफाई करता है? मैम ह्यूमन बींग्स बोलना बेटा, अकेला मैन है। मैम चलो अभी कौन बाकी रहा? मैम टेक्स्ट बुक में वो आया था इसलिए। मैम प्रसन्न। प्रसन्न खाना खा लिया? यस मैम, खाना नहीं चाय पी रहा था। अच्छा अब तो वीडियो ऑन करोगे ना, मैं चाय नहीं ले लूंगी तेरी। चलो प्रसन्न, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओनली ओवर कॉन्टिनेंट्स। फॉल्स। यस इट इज ऑल्सो फाउंड वेयर देन प्रसन्न। इफ इट इज फॉल्स देन कॉन्टिनेंट के अलावा कहाँ पे ये देखा जाता है? लैंडफॉर्म्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वेदांत कैन यू आंसर? Ma'am, they are not only found on continents, but also oceans, right? Also in the bottom of the oceans we can see the landform, mountain, plains, plateaus, everything is also in the bottom of the ocean. Yes. चलो अब बॉयज में कौन बाकी रहा? मैम कोई बाकी नहीं रहा, स्टार्ट कर दो फिर से स्टार्ट कर दूं ना? चलो मितवा से स्टार्ट करते इस बार। मितवा कहीं पे भी जाना नहीं है। यस मैम। थर्ड ट्रू एंड फॉल्स का आंसर बोलो। हाँ। Gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. True. क्या बोला बेटा आपने? True. True. चलो मितवा ने तुक्का लगाया था। जिया मैंने तुक्का नहीं लगाया था, मैंने चैप्टर पूरा 2-4 बार पढ़ा है ऐसे ही बैठे बैठे। अच्छा जिया योर टर्न बेटा। फिफ्थ फोर्थ वन। इसका आंसर फॉल्स आएगा। धारा योर टर्न। Yes, ma'am. फिफ्थ वन। Ma'am, false. Abiotic components, yes, because it consists of this. Okay, done everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay,
सबने ह्यूमन वाला पढ़ लिया जो मैंने बोला था, ह्यूमन एनवायरनमेंट सबने पढ़ लिया? यस मैम। मैम मैं एक क्वेश्चन। यस हर्ष, क्या हो गया? यस मैम, मैंने जब आंसर्स पूरे तब मैं ऑडिबल था? हाँ बेटा। ओके। चलो, धारा की बात बाकी है ना। ध्याना, योर टर्न। ध्याना। यस मैम। मैम फर्स्ट। Yes, what is the life support system among the following? मैम एनवायरमेंट। Yes, right. Diya. Yes, ma'am. None of this. What is an abiotic? क्योंकि मैम इसमें दो दो अपन दो तो एक साथ नहीं आ सकते ना, इसलिए नॉन ऑफ दिस। यस मैम ह्यूमंस नहीं आगे। ह्यूमंस बायोटिक में आते। नन ऑफ दिस आएगा बेटा। चलो, अब है खुशी, आपका टर्न बेटा। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5th June. यस बेटा, वेरी गुड। रुतवा, योर टर्न बेटा। Which is a human made? हाँ बेटा, रोड। यस बेटा, ये इजी वाला था। चलो जिया, जिया का टर्न बाकी है ना। जिया। नो मैम। जिया मैम टर्न कंप्लीट हो गया, फिर से पूछ लो। चलो तो प्रसन से शुरू करते। गर्ल्स फिनिश ना? प्रसन। Yes, ma'am. Prasan, what fifth one? What is the solid crust of the earth is called? Lithosphere. Yes, right. Ansh, your turn, beta. Yes. What is the life-bearing layer on the earth? हम bearing मतलब? Life-bearing यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं। Biosphere. हाँ, हम बायोस्फीयर में ही, हम अकेले बायोस्फीयर में रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलता है? कौन से स्फीयर में? लिथोस्फीयर। यस, लिथोस्फीयर आएगा बेटा यहाँ पे। चलो हर्ष, आपका टर्न। इट इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ये टेक्स्ट बुक का ही एमसीक्यू है। मैम एक्वेरियम। मैम यस, एक्वेरियम इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, हमने बनाया है। yes, ये ऑलरेडी आ गया है तो मैं एक को है। स्किप करती हूँ। 9 मैम वो लोग मैम फिश पकड़ के लाते हैं, बाद में उसमें डाल के सेल। यस यस। दक्ष। यस। हाँ दक्ष, 9th वाला बोलो। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? लैंड। यस। श्लोक। वेदांत, चलो तुम बताओ। What is the trade in which goods are exchanged without use of money? Barter system. Done. Okay. आगे अभी MCQs क्या और चाहिए? और चाहिए मैम और चाहिए मैम 6 मिनट और बात करने हैं। चाहिए। ओके। मैम। यस बेटा। मैम मुझे आपसे पूछना था कि मेरे पास है ना इकोसिस्टम के लिए एक मीनिंग है ना जो बहुत इजी है, तो क्या मैं वो लिख सकती हूँ? बताओ। हाँ बोलो। मैम एक मिनट कॉपी चला गया।
Ma'am, an ecosystem is a system which is formed by the interaction of living and non-living things. They are connected by the transfer of energy and material. Ma'am, ये वाला लिख सकती हूँ? Easy है लिख तो. सकते हो, यस Okay, लिख ma'am. सकते हो, कोई बात नहीं मेरी। ओके चलो पहले मैं ना ये जितना टिक करना है इसमें से डेफिनेशन वो सब बता देती हूँ, वरना वो रह जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जितने भी बॉक्स है पहले वो बताती हूँ। पेज नंबर 2 में आओ, नीचे 2 बॉक्स है बायोटिक एंड अबायोटिक, वो टिक करो। पहले सारे बॉक्स टिक करवाती हूँ। साइंस किया, बायोटिक अबायोटिक कर दिया मैम। यस मैम। यस मैम। दूसरा है वर्ल्ड ओरिजिन एनवायरनमेंट। मितवा क्या दिखा रहे हो आप? अरे रुतवा, चलो फिर पेज नंबर 4 में आओ, ग्लॉसरी इकोसिस्टम। मैम ये पूरी टिक करनी है? मैम इकोसिस्टम ये टेक्स्ट बुक में से इम्पोर्टेंट लाइन पूरा था। हाँ पूरा करना है। मैम ये टेक्स्ट बुक में से इम्पोर्टेंट लाइंस करा रहे हो आप? हाँ टेक्स्ट बुक में टिक करवा रही हूँ। ओके मैम। इकोसिस्टम से पहले जो था वो 3rd नंबर पे 3 में फर्स्ट था ना। पेज नंबर 5 में आओ, डू यू नो वाला। और उसके नीचे है बाटर सिस्टम। उसके अलावा पीछे टेक्सुअल एक्सरसाइज में एमसीक्यू और मैथ द कॉलम। मैम दिस वी हैव टू राइट इन नोटबुक। यस यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक। और मैंने आज एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाला ये डायग्राम दिया है, वो आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्टिव आप टेक्स्ट बुक के पीछे, ऑब्जेक्टिव आप टेक्स्ट बुक के पीछे सॉल्व कर सकते हो। यस जिया मैम डायग्राम और हमारा होमवर्क लिखनी है। ये जितने बॉक्सेस करवाए वो आपका होमवर्क है। ओके मैम। आई होप अभी ये चैप्टर आपको थॉरली लर्न हो गया है। यस मैम, कॉल आ गया था तो आप फिर से बताओ कि आपने क्या बताया। ये चैप्टर मींस ये बॉक्सेस लिखना है। ओके मैम, जो सारे बॉक्सेस टिक कराए वो सारे लिखने हैं। हाँ जी ओके मैम आई हैव डाउट। बोलो। मैम आप एग्जाम में हमें स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल एक्सरसाइज के भेजते हैं वो हम लिख सकते हैं? हाँ, और वो ही लर्न करने हैं। मैं अगर एग्जाम लेती हूँ, मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर पूछा है तो आपके स्कूल में जो लिखा है आपको वही आंसर लिखना है। हर एक के स्कूल में जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, स्कूल में जो लिखवा है वही लर्न करके आपको लिखना है। मैं राइट दूंगी आपको आंसर, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगी आप वो लर्न करोगी तो स्कूल में आपको प्रॉब्लम होगा। क्लियर? यस मैम। चलो तो अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए सबको? खुशी, अभी आप कमेंट में कंफ्यूज नहीं होगे ना बेटा? नो मैम। मैम यस बेटा। मैम लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेबस नहीं दिया था एग्जाम का, क्योंकि मैम कल ही आया। हाँ बता दो, डेट भी बता दो तारा। मैम डेट है 9 जुलाई। सिलेबस बता दो बेटा। मैम 2 चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में। 2 चैप्टर? यस मैम। ओके, हमारा तो सब हो गया है ना बेटा? यस मैम। सबको मैं हिस्ट्री 2 की वर्कशीट भेज दूंगी ये वीक। ओके मैम, मेरी भी 1 2 सब वर्कशीट्स आ जाएगी सबको। ओके मैम। चलो देन बाय एवरीवन। बाय मैम। क्या हो गया? बाय मैम। मैम मेरी एग्जाम है। कब है आपकी एग्जाम?
मैम परफेक्ट डेट नहीं बताई, पर हमें इतना बताया है कि डेट आएगी तब बताना मुझे, ठीक है बेटा? वीक में। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम।